Hello everyone, welcome you all onto the SVP online classes study channel. We have discussed about the chemical reactions and chemical equations in the previous class. So before moving to the next topic, we have a quick revision. Right from the yesterday's class, we have learned that the process or mechanism which essentially contain a chemical change in it is called a chemical reaction. Right, or in other words, what we can say, the process in which two or more than two substances are combined together and they form a new substance. That substance may or may not have the similar properties. That process is called chemical reaction, right? So all those changes which are which essentially contain chemical change, those chemical changes have a chemical reaction, right? And the better way to represent that chemical reaction is called chemical equation. So chemical equation is nothing but the representation of a chemical reaction is called chemical equation. मतलब जितने भी चेंजेज हो रहे हैं वो तो केमिकल रिएक्शन है, दैट इज द एंटायर प्रोसेस, राइट? उस एंटायर प्रोसेस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे थे तो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा था, राइट? सो दिस होल प्रोसेस बाय विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर combined together to form water, that whole process is called chemical reaction, while the representation of that formation of water in terms of twice of H2 plus O2 is equal to twice of H2O, that is called chemical equation. So let we move to the next topic. Our next topic is what? How to write chemical equations, right? It means in which manner we can write the chemical equation, right? So we can write the chemical equation in three basic steps, right? The first step is what? Writing skeletal equation. The first step is writing skeletal equation. This skeletal equation is what? The basic information regarding the reaction or what's happening, that is to be written in a verbal form, that is called the skeletal equation. जिस तरीके से हमारी बॉडी का जो पूरा बैलेंस है वो बेस होता है किसके ऊपर? स्केलेटन के ऊपर, उसी तरीके से किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो सबसे पहला तरीका है वो क्या है? राइटिंग स्केलेटल इक्वेशन, राइट? द सेकंड step is to write the chemical equation, and the third step is to write is the balancing of chemical equation. So a equation can be represented, or a equation can be written in three basic steps. And what are those three basic steps? First one is writing the skeletal equation, second one is the writing the chemical equation, and the third one is the balancing of chemical equation. And the combination of all those three steps represents a chemical reaction in terms of chemical equation. Is it clear? Right, so let us discuss these three steps in detail. The first step to write a chemical equation is writing skeletal equation. Skeletal means the basic information that we have to represent, right? For example, yesterday we have taken an example that hydrogen, whenever reacted with oxygen, at that time they form water, right? At that time water is formed. So this is the basic information regarding the change of hydrogen and oxygen in terms of water. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जो चेंज हो रहा है वो चेंज क्या है? कि वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है. तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस केमिकल चेंज. सो इसको हम क्या क्या बोलेंगे? दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन और द बेसिक स्केलेटल इक्वेशन दैट वी कैन राइट, राइट? तो अगर हम लिख रहे हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन they are forming water, so this is the basic information, or it is called the basic skeletal equation, right? In the basic skeletal equation what we generally do, we write reactants to the left hand side. It means all the reactants are present in the left hand side, while the products are present in the right hand side generally, and they are separated by an arrow. This arrow indicates that these reactants are reacting together and they are converting in terms of products. Is it clear? Right? It might be possible that in a chemical change or a chemical reaction, more than one reactant or more than one products are present. If more than one reactant or more than one products are present, then
these reactants as well as the products are written by separating a positive sign, right? It means they are written by placing a positive sign in between them. For example, yesterday we have taken that yesterday we discussed that hydrogen and oxygen are combined together, then water is formed. So how many reactants are present? The two reactants are present. One is hydrogen and another one is oxygen, right? So these two reactants are separated by means of a positive sign. इसलिए तो हम कह सकते हैं कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है उस बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं, राइट? उस स्केलेटल इक्वेशन के अंदर जो आपस में रिएक्ट करते हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं. दे जनरली राइट इन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट, वाइल द प्रोडक्ट्स आर रिटन इन द राइट हैंड साइड. रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट्स को राइट साइड में लिखते हैं. उन दोनों को सेपरेट करते हैं एक एरो से, राइट. ऐसा भी हो सकता है कि किसी केमिकल इक्वेशन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हो या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हो. ऐसी सिचुएशन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को लिखने के लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज़ करते हैं. हियर एन एग्जाम्पल इज रिटन दैट एंड दैट एग्जाम्पल सेज दैट whenever magnesium react with oxygen, at that time magnesium oxide is formed, right? So we have written here magnesium and oxygen, and they are combined together by means of the positive sign, and they are forming magnesium oxide. This is actually the combustion of magnesium. Whatever takes place here, this is what combustion of magnesium. We will take it about later, right? सो किसी भी केमिकल इक्वेशन की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम वर्बली लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक स्केलेटल इक्वेशन. इज इट क्लियर? राइट. सिमिलरली हम यहाँ पे लिख सकते थे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दे आर फॉर्मिंग वाटर. We can also write that hydrogen plus chlorine they are forming hydrochloric acid, right? In this way this basic skeletal equation is written. This is the first part to write a chemical equation, right? The second part or the second step is what? Writing chemical equation. In the previous class we studied that chemical compounds are represented by chemical formulas, right, or the symbols. Is it clear? So it becomes bulky to represent each and every reactant as well as product verbally, but it's quite convenient to represent these reactants as well as products by writing their chemical formulas. So if we represent a basic skeletal equation in terms of writing their chemical formulas, then that would code the chemical इक्वेशन. मतलब हम केमिकल इक्वेशन में क्या करते हैं, जो सेकंड स्टेप हमारा, उस सेकंड स्टेप में करते ये हैं कि जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हमारी बेसिक स्केलेटल इक्वेशन में प्रेजेंट हैं, उन बेसिक स्केलेटल इक्वेशन में प्रेजेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम उनके केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम हमारे पास जो इस स्केलेटल इक्वेशन को लिखने की बल्कीनेस थी वो रिड्यूस हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, here in this way we have discussed that the magnesium and oxygen they are forming magnesium oxide, right? So magnesium can simply be written in terms of its symbol, that is Mg, and oxygen is written by its symbol, that is O2, and the magnesium oxide's chemical formula is MgO, right? So a representation of this equation by Mg plus O2 and they are forming MgO, right? So the convenient way to represent the magnesium oxide or this reaction. Is it clear? Right. तो हमारा सेकंड स्टेप है कि हम इस मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट कर दे, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट कर दे, एंड दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय MgO, राइट. तो ये एक इजी और कन्वीनियंट मेथड होगा किसी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का. सो वी हैव डिस्कस्ड सो फार द टू बेसिक स्टेप्स. द फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द बेसिक स्केलेटल इक्वेशन of a reaction, and the second one is what? Writing chemical equation by representing all the substances which are present in the reactant and product side by their chemical formulas.
The third and most important step to write a chemical equation is balancing of chemical equation. Is it clear? Right, this balancing of chemical equation is very important, and a question will definitely be asked in the board's exam on the basis of this topic. The balancing of chemical equation is very important, right? The next year also, in the 2021 CBSE board exam, a question will definitely, or 101% will be asked on the basis of this topic, that is balancing of chemical equation. But before going to the balancing of chemical equation, let me understand why do we need to balance a chemical इक्वेशन, राइट? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट आखिर क्यों होती है, राइट? इन द 9th क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट? और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट mass neither be created nor be destroyed but it can be transformed from one form to another form. या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि मास ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट. यूनिवर्स का जो भी मास है वो मास क्या होगा? कांस्टेंट होता है. ना तो मास को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. मास को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं. आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा, लास्ट ईयर हमने दो बेसिक लॉज पढ़े थे. फर्स्ट वन इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द सेकंड वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उस मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. और यहाँ पर किसी केमिकल इक्वेशन में या किसी केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है? किसी केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में एक चेंज हो रहा है, right? It means a chemical equation or chemical reaction essentially contains a chemical change, or if a change is there, it means some substances are converting into some another substances. जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके कन्वर्ट हो रहे हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, जिनमें वो कन्वर्ट हो रहे हैं उसको हम प्रोडक्ट कह रहे हैं. अगर कुछ कन्वर्जन या कुछ चेंज टेक प्लेस हो रहा है, सो दैट डेफिनेटली मास का कन्वर्जन टेक प्लेस हो रहा है, राइट? डेफिनेटली मास का कन्वर्जन टेक प्लेस हो रहा है. और अब मास एक बेसिक क्वांटिटी है विच ऑलवेज फॉलोज द यूनिवर्सल लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसका मतलब ये है कि अगर के केमिकल चेंज किसी केमिकल रिएक्शन में हो रहा है तो मास जो है वो मास शुड बी कांस्टेंट. मास को कांस्टेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इट मीन्स जितना मास का कन्वर्जन रिएक्टेंट साइड से हुआ है उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में फॉर्म होना चाहिए. क्यों? क्योंकि मास तो कभी चेंज हो नहीं सकता, मास तो कभी क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो नहीं सकता. इट मीन्स जितना मास रिएक्टेंट्स का कम होगा उतना ही मास प्रोडक्ट्स का बनना चाहिए इन ऑर्डर टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट? सो हम जनरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को कि हम लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स लिखते हैं और ये रिएक्टेंट्स आपस में मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट? ये रिएक्टेंट एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और अगर ये रिएक्टेंट एक या एक से ज़्यादा हैं तो ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं. आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इनके मास का कन्वर्जन हो रहा है, और इन रिएक्टेंट्स के रिएक्शन की वजह से प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं. इसका मतलब मास प्रोडक्ट का बढ़ रहा है, रिएक्टेंट का मास कम हो रहा है. तो होना ये चाहिए कि जितना मास रिएक्टेंट्स का कम हो उतना ही मास प्रोडक्ट का बढ़ना चाहिए, राइट? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है. बिकॉज मास को हम ना तो बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इज इट क्लियर? इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्टेंट साइड का मास जो है वो प्रोडक्ट साइड के मास के बराबर होना चाहिए. क्यों? ये इसलिए होना चाहिए कि इनिशियली तो सिर्फ रिएक्टेंट्स ही प्रोडक्ट प्रेजेंट थे. जब उन्होंने रिएक्शन नहीं की तब तक सिर्फ रिएक्टेंट्स ही प्रेजेंट थे और प्रोडक्ट्स तो जीरो थे. अब रिएक्टेंट का मास घटेगा, प्रोडक्ट्स का बढ़ेगा. इज इट क्लियर? राइट? तो इनका इस रिएक्टेंट का चेंज प्रोडक्ट की टर्म में हो चुका है. इस चेंज का जो मास है वो मास का चेंज कांस्टेंट होना चाहिए, राइट? मास का चेंज कांस्टेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम
इस रिएक्टेंट साइड के मास को अगर प्रोडक्ट साइड के मास से बराबर कर दें, देन इट इज कॉल्ड, इट विल डेफिनेटली फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा, इनिशियली कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। जब जैसे पहला एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्ट करना स्टार्ट ही नहीं किया तो कोई वाटर फॉर्मेशन नहीं था। फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन जब होगा तो उन हाइड्रोजन का कुछ मास ऑक्सीजन के कुछ मास के साथ रिएक्ट करेगा, और जितना मासेज का आपस में रिएक्शन होगा उतना ही मास वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा प्रोडक्ट साइड में। इज इट क्लियर? तो जितना रिएक्टेंट्स का कम होगा उतना ही प्रोडक्ट में फॉर्म होगा। इज इट क्लियर? तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड का जितना मास कम होगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में फॉर्म होगा। तो सिंपली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट्स का मास सेम कर दें। इफ द मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज सेम, देन वी कैन से दैट law of conservation of mass is fulfilled. इज इट क्लियर? तो इस बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में हम करते क्या हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड्स के मासेस को इक्वल करते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन इन ऑर्डर टू follow law of conservation of mass, because it states that mass neither be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another form. Is it clear? Right? So balancing of chemical equation is important, और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में हमको करना क्या है, रिएक्टेंट के मास को प्रोडक्ट के मास के बराबर करना है। रिएक्टेंट में तो कुछ एक रिएक्टेंट साइड में तो कुछ एक सब्सटेंशिएज है, लेट अस सपोज दो सब्सटेंशिएज है, एक ए है एक बी है, और प्रोडक्ट साइड में जो बन रहा है लेट अस सपोज उसको हम सी बोल रहे हैं। राइट? अब हमें पता है कि ये जो मास होता है किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी कंपाउंड का जो मास होता है, दैट मास इज obtained by adding the masses of all the atoms present into that compound। हमें ये पता है कि किसी भी कंपाउंड का जो मास होता है वो मास उसके अंदर प्रेजेंट रहने वाले सारे एटम्स के एटॉमिक मास के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल मैं वापस से लिखता हूँ कि H2 and O2 and they are forming H2O। राइट? अगर हमें इस H2 का मास फाइंड आउट करना है, देन व्हाट वी हैव टू डू, एक हाइड्रोजन का मास प्लस दूसरे हाइड्रोजन का मास, दिस विल रिप्रेजेंट द टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन, देन व्हाट वी हैव टू डू, एक ऑक्सीजन का मास दूसरे ऑक्सीजन का मास, इन दोनों के मासेस को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल मास आएगा किसका, ऑक्सीजन का। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मास ऑफ H2O, देन व्हाट वी हैव टू डू, एक हाइड्रोजन का मास प्लस दूसरे हाइड्रोजन का मास प्लस एक ऑक्सीजन का मास। राइट? इस तरीके से हम किसी का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक इक्वल दीज टू मासेस विच आर प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड। पक्का? हमको करना क्या है, इन मासेस को इक्वल करना है, और मास क्या होता है, उसके अंदर प्रेजेंट रहने वाले एटम्स के मासेज का सम होता है। राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जो भी केमिकल इक्वेशन हमको गिवन हो उन सब के लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हैं और राइट हैंड साइड की मासेज को हम इक्वल कर दें। तो या तो हम मासेज को इक्वल कर दें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जितने भी मासेज है वो तो इन एटम्स की वजह से आते हैं, जैसे दो हाइड्रोजन के एटम है, एटम्स की वजह से आते हैं, क्योंकि जो मास होता है वो उनके एटम्स के एटॉमिक मासेज का सम ही होता है। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी जो टोटल मास होगा H2O का वो इनके इंडिविजुअल एटम्स के एटॉमिक मास के बराबर होगा। एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इक्वलाइज द मास अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो इंस्टेड ऑफ इक्वलाइजिंग द मास व्हाट वी कैन डू, हमको तो मास इक्वल करना है। अगर मास है इन एटम्स के ऊपर डिपेंड करता है तो क्यों ना हम मास को इक्वल करने के पीछे पड़े हैं, हम इन नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल कर दें। अगर नंबर ऑफ एटम्स आपस में इक्वल हो जाएंगे तो मास तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मास इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन टू द एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन टू द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट साइड। समझ में आया कुछ? मतलब हमें मास इक्वल करना है, और वो मास डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, मास डिपेंड कर रहा है एटम्स के एटॉमिक मास के ऊपर। राइट? मास डिपेंड कर रहा है एटम्स के एटॉमिक मासेस के ऊपर। सो इंस्टेड ऑफ बैलेंसिंग द मास
वी कैन मेक इक्वल द नंबर ऑफ एटम्स। अगर हमने दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल कर दिए तो मास तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगेन आई एम राइटिंग दिस वन दैट H2 प्लस O2 एंड दिस इज वॉट H2O, राइट। हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए इसके मास को इक्वल करना जरूरी है, लेफ्ट हैंड साइड का टोटल मास और राइट हैंड साइड का टोटल मास। तो लेफ्ट हैंड साइड के टोटल मास को राइट हैंड साइड के टोटल मास को इक्वल करने के लिए हम नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल कर दें। देखिए रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, 1 हाइड्रोजन H2. H2 means 2 hydrogen atoms are present. So how many hydrogen atoms are present? 2. Similarly, how many oxygen atoms are present in the reactant side? 2. Right? How many hydrogen atoms are present in the reactants in the product side? Product side में H2O में कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन प्लस how many oxygen atoms are present? 1. मतलब हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट थे और राइट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। पक्का। इसका मतलब हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स तो सेम है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, लेकिन राइट हैंड साइड में एक ऑक्सीजन एटम कम है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है और राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही प्रेजेंट है। अगर हम इन ऑक्सीजन एटम्स को के नंबर्स को इक्वल कर दें किसी भी तरीके से तो हमारे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो जाएंगे, और अगर दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए तो मास तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाएगा, राइट। So in a nutshell what I can say that in the balancing of chemical reaction we need to equal the number of atoms present in the compounds in left side of the reaction that is reactant side and right hand side of the reaction that is product side। हमें reactant side और product sides के number of atoms को ही क्या करना है, इक्वल करना है, क्योंकि ये अल्टीमेटली मास को इक्वल करेगा और मास को इक्वल करेगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा। ठीक है, यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है कि वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, राइट। सो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज important in order to follow the law of conservation of mass. Is it clear? Right. So you can go through the statements that I have written here. You may find each and every information here in the notes, right? ठीक है, तो अब हमें करना है क्या, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, राइट। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पास आपके एग्जाम में आप देखोगे ही देखोगे। इज इट क्लियर? अब हम स्टेप बाय स्टेप पे समझते हैं कि हम इस बैलेंसिंग को किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। सो अब तक हमने देखा कि बैलेंसिंग क्यों करते हैं या बैलेंसिंग में हमको करना क्या है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाले सेक्शन में कि बैलेंसिंग में एक्चुअली हम करते क्या हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल दैट इज मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम when react with the oxygen at that time magnesium oxide is forming, right? So magnesium and oxygen they form magnesium oxide, राइट। ये बेसिक स्केलेटल इक्वेशन है। इसको अगर हम केमिकल इक्वेशन में लिखना चाहते हैं तो मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट कर दिया, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट कर दिया, MgO को मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से रिप्रेजेंट कर दिया। हमको करना क्या है, हमको जिस भी केमिकल इक्वेशन को या स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस आउट करना है उसके लिए हमें राइट साइड में एक टेबल बनानी है, और उस टेबल में हमें करना क्या है, वो टेबल क्या कहती है, उस टेबल में हमको करना है कि उस टेबल में हमको सबसे फर्स्ट टुक में एलिमेंट लिखना है। जैसे आप टेबल में देख पा रहे हैं एलिमेंट, एलिमेंट मीन्स कौन सा एलिमेंट या एटम, राइट। फिर हमको नेक्स्ट कॉलम में लिखना है रिएक्टेंट एंड आफ्टर दैट प्रोडक्ट, राइट। जैसा कि आप इस टेबल में देख पा रहे हैं कि एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है इस रिएक्शन में, और रिएक्टेंट साइड में कितने एलिमेंट होंगे और प्रोडक्ट साइड में कितने एलिमेंट होंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इक्वेशन ये है Mg प्लस O2 दैट इज इक्वल टू MgO, राइट। और हमें टेबल बना रहे हैं तो उस टेबल में हमको करना क्या है, इस टेबल में हमको फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट लिखना है, सेकंड कॉलम में हम रिएक्टेंट लिखते हैं एंड थर्ड कॉलम में प्रोडक्ट लिखते हैं, राइट। सो जस्ट ट्राई टू सी हियर हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन टोटल प्रेजेंट
इन दिस इक्वेशन द टू एलिमेंट्स आई एम सीइंग हियर, एक तो मैग्नीशियम प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो जो रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट होगा वही प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वन इज Mg एंड अनदर वन इज ऑक्सीजन। इसको हम इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे कि कौन से एटम्स प्रेजेंट है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट। हमने इसको लिख लिया। अब देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में ये एलिमेंट्स किस किस नंबर में प्रेजेंट है। तो रिएक्टेंट साइड में हाउ मेनी मैग्नीशियम एटम्स आर प्रेजेंट, only one magnesium atom is present in the reactant side. How many magnesium atoms are present in the reactant side? reactant side में कितने magnesium atoms present है? reactant side में 2 magnesium atoms present है। सॉरी, reactant side में एक magnesium atom present है, राइट। reactant side में एक magnesium atom present है, पक्का, वेरी गुड। और प्रोडक्ट साइड में कितने मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट है? आफ्टर सीइंग टू द इक्वेशन, प्रोडक्ट साइड में MgO दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम कितने प्रेजेंट है, 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि प्रोडक्ट साइड में भी कितने मैग्नीशियम प्रेजेंट है, 1। सेकंड देखिए, दूसरा एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। और हाउ मेनी ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड। देखो O2 है, क्या दिया हुआ है, Mg प्लस O2, right? So how many oxygen atoms are there? The 2 oxygen atoms are present in the reactant side. कौन सा एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं। और राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है, MgO इज देयर, O इज वॉट, 1 हियर, O इज वॉट, 1, पक्का। तो इस तरीके से हम एक टेबल फॉर्म कर लेंगे, जैसा कि आपको इस टेबल में दिखाया गया है कि लेफ्ट हैंड साइड में एक मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड में भी एक मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट है। लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड में एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो क्या कह सकते हैं हम कि मैग्नीशियम के टर्म्स में तो ये इक्वेशन बैलेंस है, जितने मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में है उतने ही राइट साइड में और प्रोडक्ट साइड में है। लेकिन ऑक्सीजन के टर्म्स में ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड में 2 प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड में 1 प्रेजेंट है, राइट। तो अगर हम किसी भी तरीके से इन ऑक्सीजन एटम्स को इक्वल कर पाएँ तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के 2 तरीके हैं। रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड में 1 ऑक्सीजन है। तो हमको क्या करना होगा, मैग्नीशियम की टर्म्स में तो बैलेंस है, या तो हम रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट जो दो ऑक्सीजन एटम है, या तो हम उसको 1 बना दें, या तो ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि जो प्रोडक्ट साइड में एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है उसको हम क्या बना दें, 2 बना दें। द 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर। ऑक्सीजन के एटम्स को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो हम जो रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है उनको 1 बना दें, या फिर जो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन एटम्स है उसको हम क्या बना दें, 2 बना दें। अगर हमको रिएक्टेंट साइड के 2 ऑक्सीजन एटम्स को 1 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। व्हेन एवर 2 इज डिवाइडेड बाई 2 एट दैट टाइम वी विल गेट 1। और if you go through the second method, if you want to make this 1 to 2, it means what we have to do, अगर हमको इस 1 को 2 में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इज इट क्लियर? और अगर हम तो या तो हमें डिवीजन यूज में लेना है 2 को 1 करने के लिए, या फिर 1 को 2 करने के लिए हम तो क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो वी कैन यूज बोथ द मेथड्स, बट जनरली वी विल प्रेफर द multiplication option. So always try to do such balancing by the multiplication only. It means हमको बड़े को छोटा नहीं करना, हम छोटे से बड़े में जाएंगे। बड़े से छोटा करना डिस्ट्रक्शन बना जाता है, डिस्ट्रक्शन इज नॉट डन बाय अस, वी विल मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर, राइट। तो हम हमेशा जितनी भी बैलेंसिंग करेंगे उनमें मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन पे जाएंगे, मतलब हमको 1 को 2 करना है। इज इट क्लियर? देन व्हाट वी कैन डू, हमको क्या करना है यहाँ पे कि हम राइट हैंड साइड में जहाँ पे 1 ऑक्सीजन है उसको हमको 2 करना है, तो हम 2 किस तरीके से कर सकते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई 2, राइट। सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी कैन राइट दैट रिएक्शन हमारे पास क्या थी, MgO, पक्का।
अब हमें इसको बैलेंस करने के लिए फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा पक्का। जहाँ पर ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट है राइट साइड में, वहाँ पर जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। अब ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट राइट हैंड साइड में, तो MgO इज देयर, वी विल नॉट राइट दिस 2 हियर इन द सबस्क्रिप्ट, हमें इसको कंप्लीटली मल्टीप्लाई करना होगा, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, Mg प्लस O2, दैट वी हैव टू ऐड 2 हियर बिकॉज वी वांट टू मेक द ऑक्सीजन इक्वल, सो ट्वाइस ऑफ MgO इज देयर, राइट। अब क्या हुआ, रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट थे। अब एक ऑक्सीजन एटम तो पहले से प्रेजेंट था, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब कितने ऑक्सीजन एटम्स हो गए, 2 ऑक्सीजन एटम्स हो गए, राइट। तो अब ऑक्सीजन एटम्स भी बैलेंस हो गए, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर नाउ इक्वल। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ये कि जहाँ पर हमने ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई किया, उसी ऑक्सीजन के साथ में मैग्नीशियम भी प्रेजेंट था, तो 2 के मल्टीप्लाई होने के बाद में मैग्नीशियम भी कितने हो गए, मैग्नीशियम भी 2 हो गए, राइट। तो हमने जो किया पहले वाले को, इसमें मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, हमने इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ट्वाइस ऑफ MgO हो गया। लेकिन इस ट्वाइस ऑफ MgO के चक्कर में ऑक्सीजन तो इक्वल हो गया, बट मैग्नीशियम राइट हैंड साइड में 2 हो गए और लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में 2 है मैग्नीशियम, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो हमें इस 1 को भी, इस एक मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे आप यहाँ पे टेबल में देख पा रहे हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर रखा है नेक्स्ट स्टेप में। तो अगर मैं इस मैग्नीशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देन व्हाट वी विल हैव ट्वाइस ऑफ Mg प्लस O2 एंड दे विल फॉर्म ट्वाइस ऑफ MgO, राइट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितने मैग्नीशियम एटम्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में, 2, कितने मैग्नीशियम एटम्स है राइट रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में, 2, राइट, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। कितने ऑक्सीजन एटम्स है रिएक्टेंट साइड में, 2, और कितने ऑक्सीजन एटम्स है प्रोडक्ट साइड में, 2, बिकॉज 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 ऑक्सीजन एटम दैट विल 2। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के दोनों जो एटम्स प्रेजेंट थे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, वो दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं, वो दोनों के दोनों रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड में बैलेंस हो चुके हैं, और रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड में बैलेंस हो चुके हैं। इसका मतलब इन सबका मास रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल हो चुका है, और इक्वल हो चुका है इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल कर रहा है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल कर रहा है, इट मीन्स आर बैलेंसिंग इज राइट, पक्का। तो इस तरीके से हमको किसी भी केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग करनी है। यही रीजन है कि आप लोगों ने अब तक जितनी भी केमिकल रिएक्शंस देखी होगी अपनी बुक में, उन सब बुक के अंदर ये मल्टीप्लिकेशन में ट्वाइस ऑफ Mg प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ MgO होता है, राइट। सो दिस इज द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्यों कर रहे हैं ये अपन समझ चुके हैं, राइट। यहाँ पर आप इस टेबल में देख सकते हैं, इस टेबल के अंदर मैंने पहले ऑक्सीजन को इक्वल करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, राइट। जब 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे, तो मैंने यहाँ लिखा Mg प्लस O2 दैट इज ट्वाइस ऑफ MgO, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, अनइक्वल हो जाएंगे। तो फिर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, एंड आफ्टर दैट अल्टीमेटली जो पूरी की पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन थी उसको हमने कैसे लिख रखा है, ट्वाइस ऑफ Mg प्लस O2 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ MgO। इज इट क्लियर, राइट। Let us suppose let me move to the next question. Sorry, our next question is what, hydrogen plus oxygen and that is forming water। ये हम एग्जाम्पल थे जो हमने कल से डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या फॉर्म करते हैं, वाटर फॉर्म करते हैं, राइट। तो हमने इसकी केमिकल इक्वेशन लिख दी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड वाटर, राइट। if you want to make the if you want to draw the table, then how can we draw? Here we have written element, how many elements are present in the reaction, 2 elements are present actually, एक तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट। और जो एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट प्रेजेंट होंगे वही प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट होंगे, तो 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट है, एक तो है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, पक्का। अब देखिए कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में, H2 मीन्स एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन H2, तो कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, 2 लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, प्रोडक्ट साइड में कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, तो प्रोडक्ट साइड में भी कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, 2, जो कि यहाँ लिखा हुआ टेबल में। अच्छा, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और रिएक्टेंट साइड में कितने ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है, O2,
oxygen O2, so 2 oxygen atoms are present. We have written here that 2 oxygen atoms are present. And how many oxygen atoms are present in the right hand side? H2O. हाइड्रोजन तो 2 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है, तो हमने यहाँ लिख दिया कितना? 1 ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट। अब देखिए ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हाइड्रोजन के टर्म में तो बैलेंस है। क्यों? क्योंकि 2 ही रिएक्टेंट साइड में थे, 2 ही प्रोडक्ट साइड में थे। लेकिन ऑक्सीजन के टर्म में ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस मीन्स ऑक्सीजन इज लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है और राइट हैंड साइड में 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब हम या तो 2 का 1 करें या 1 का 2 करें। 2 का 1 में अपन विश्वास रखते नहीं है, हम 1 का 2 करेंगे। तो हमको क्या करना होगा? ऑक्सीजन को इक्वल करने के लिए हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी इक्वेशन ऐसी थी H2 प्लस O2, और यहाँ पे क्या था? H2O, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो हमको राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट साइड में, जैसे यहाँ पे हम प्रोडक्ट साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए प्रोडक्ट साइड में जहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन तो यहाँ पर अवेलेबल है, तो हमको इससे को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई बाहर करना है, अंदर नहीं करना। सब्सक्रिप्ट में बाहर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए क्या हुआ। अब देखो 1 ऑक्सीजन तो थी रही, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऑक्सीजन हो गई, और रिएक्टेंट साइड में तो 2 ही थी। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, लेकिन इस बैलेंसिंग के चक्कर में एक गड़बड़ और हो गई। रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थी, और प्रोडक्ट साइड में पहले से 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थी। जब हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन दैट आर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड हाउ दोज बिकम 4। ये टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं। और रिएक्टेंट साइड में तो 2 ही रह गए हैं, तो कोई बात नहीं, 2 को तो हम आराम से 4 कर सकते हैं। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब ध्यान देने की कोशिश कीजिए, रिएक्टेंट साइड में जहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। रिएक्टेंट साइड में तो हाइड्रोजन ये प्रेजेंट है, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा क्या? रिएक्टेंट साइड में ये हाइड्रोजन प्रेजेंट थी, इस हाइड्रोजन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस रिएक्टेंट साइड के ऑक्सीजन के साथ हमने कुछ नहीं किया था, और राइट हैंड साइड में भी हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं, देन हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड, और रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है? H2 में 2 हाइड्रोजन एटम था, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब टोटल कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है? 4। अच्छा O2 में कितने ऑक्सीजन एटम्स है? 2 हैं, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, 2 पक्का। अच्छा अब इधर देखिए ट्वाइस ऑफ H2, 2 हाइड्रोजन एटम्स मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 4, और ऑक्सीजन भी कितने हैं? एक ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 2 ऑक्सीजन एटम। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स क्या हो गए हैं? इक्वल हो गए हैं। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स इक्वल हो गए हैं, तो हमारे पास जो ओवरऑल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आई है, दैट ओवरऑल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज वो ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ H2O। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेट वी कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल, right? The next one you can find here the magnesium plus hydrochloric acid, and that those are forming magnesium chloride plus hydrogen। ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है जो आपस में रिएक्ट करके 2 ही प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड, दूसरा है हाइड्रोजन। तो ये हमारी बेसिक स्केलेटल इक्वेशन है। इसको अगर हमको केमिकल इक्वेशन में लिखना है तो मैग्नीशियम को तो हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl होता है। आगे मैग्नीशियम क्लोराइड दिया हुआ है तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 हमको पता है कैसे केमिकल फॉर्मूलाज लिखे जाते हैं। प्लस हाइड्रोजन को हम क्या लिख सकते हैं? H2 लिख सकते हैं, पक्का। तो हमें इसको बैलेंस आउट करने के लिए पहले टेबल बनाने की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। एंड ऑन द बेसिस ऑफ टेबल वी विल ट्राई टू लर्न इट, राइट। कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ पर एलिमेंट प्रेजेंट है, एक तो मैग्नीशियम है, रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है यहाँ पे? एक तो मैग्नीशियम है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया Mg, राइट। एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक क्लोरीन प्रेजेंट है, पक्का। कितने मैग्नीशियम प्रेजेंट है? मैग्नीशियम एक प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में, ध्यान से देखिए। कितने मैग्नीशियम प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड में? प्रोडक्ट साइड में भी एक है। कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है? रिएक्टेंट साइड में एक है। कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है? प्रोडक्ट साइड में 2 हैं, पक्का। कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है कितने क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट है? रिएक्टेंट साइड में एक है। और कितने क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट है? प्रोडक्ट साइड में 2 हैं। मतलब हमारे पास जो ये रिएक्शन थी, ये रिएक्शन मैग्नीशियम के टर्म में तो बैलेंस है क्योंकि दोनों साइड में एक एक एटम्स हैं, लेकिन हाइड्रोजन में और
क्लोरीन के टर्म्स में ये बैलेंस नहीं है, रिएक्टेंट साइड में दोनों का एक एक एटम प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड में दोनों के दो दो एटम्स प्रेजेंट है। तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को डबल डबल करना है, ठीक है। हाँ, तो हम मल्टीप्लाई का ऑप्शन ही लेते हैं। तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 है, राइट हैंड साइड में 2 है, तो हमको इसको हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कहाँ किया हमने, रिएक्टेंट साइड पे, जहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन HCl की टर्म में प्रेजेंट है, राइट, तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इफ हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, लेफ्ट हैंड साइड में 2 हो गए, राइट हैंड साइड में भी 2 हो गए, तो हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस हो गए, राइट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्या, क्लोरीन। क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 2 है, तो हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन देखिए, जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन प्रेजेंट था उसी जगह पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट था। तो जैसे हमने हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्लोरीन ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो गया। तो अब क्लोरीन कितने हो गए लेफ्ट हैंड साइड में, ध्यान से देखिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई HCl, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, एक क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्लोरीन पहले से 2 चुके और राइट हैंड साइड में भी क्या है, 2 है। इट मीन्स जैसे हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया उसी के साथ साथ क्लोरीन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, राइट। इट मीन्स अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे HCl प्रेजेंट था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन हमारी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई, राइट। सो व्हाट इज द ओवरऑल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओवरऑल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज व्हाट, Mg, और हमने जहाँ पे HCl प्रेजेंट था उस HCl को ऐसे लिखा और ये किस में बन रहा था, MgCl2 प्लस H2 इज गिवन। अब ध्यान देने की कोशिश कीजिए, एक Mg प्रेजेंट है, एक Mg प्रेजेंट है, ट्वाइस ऑफ HCl, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है पक्का, 2 इंटू Cl, 2 Cl है और 2 Cl प्रेजेंट है। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, एटम्स के टर्म्स में बैलेंस है, और एटम्स के टर्म्स में बैलेंस है तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये तो मास की टर्म्स में भी बैलेंस है। इज इट क्लियर, राइट। सो दिस इज द ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन, Mg plus twice of HCl, that is forming MgCl2 plus H2. Is it clear, right? Some more examples are given in this document, so you should try to learn all those things that I have explained in this chapter. Try to learn and visualize this into the document. Try to go through the document line by line and word by word, and on the basis of explanation of these 3 examples, that is first one is the magnesium and oxygen, they are forming magnesium chloride. Second one is hydrogen and oxygen, they are forming water. And the third one is what, magnesium plus hydrochloric acid, and they are forming magnesium chloride and hydrogen, राइट। इन तीनों एग्जाम्पल्स को हमने किस तरीके से बैलेंस किया इसको देखते हुए यू शुड ट्राई टू बैलेंस आउट द reactions which are given in the upcoming questions, that is 4, 5th and 6th. You can try at home, otherwise we will discuss it in the next lecture. Is it clear? So if you understand all those things that have been completed so far, if you have understood only, then you can write these things in your chemistry notebook, right? The document is also available onto the WhatsApp group, right? So stay at your home, be safe, protect your family, and enjoy the melody of life. Thank you.